please start the session and we can avail the knowledge of AI, how we can utilize the AI. Thank you. Thank you, Rashid. Thank you, everyone, for coming here. We welcome you all. Mr. Arun, just sorry to interrupt you. One of the team member, the audience, they asked one question, Mohammad Najib, that I am first year CS student. Should I watch this meeting? Yes, of course, Mr. Najib, since you are a CS computer science student, so you must watch this AI. Okay. So let us talk about something about AI. So AI, naturally, we know that artificial intelligence, it is the full form of AI, and as we know it, that is a broad science of simulating intelligence in machine. The AI can mimic our intelligence, our human intelligence. It has not completely mimicked our intelligence, but it is trying to mimic, and that's why the AI is classified into ANI, artificial narrow intelligence. Then examples are chatbots. These are ANI, simple chatbots. In when we visit, जब हम वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसमें चैटबोट्स होते हैं, और ये सब ANI है, जैसे सीरी, अलेक्सा हो गए, ये सब ANI है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसके अलावा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो कि अभी अचीव की जानी है, लेकिन वो वी आर वेरी नियर टू आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस मीन्स द ह्यूमन इंटेलिजेंस, विच इज that AI which is just like human thinking. So we are near to that. These chatbots, this ChatGPT, and these are trying to achieve that general intelligence. And after that, it is a very theoretical thing, but people are saying that ASI, artificial super intelligence, that AI which can surpass human intelligence, which can go beyond human intelligence, that will be called as ASI. But that is a completely theoretical part. Nothing is going on it. Nothing, no working is there is no working on ASI. But right now we are working on AGI, artificial general intelligence. So that was a theoretical part. I think not many will be interested in learning theory here. So I would like to start my presentation. The topic today is, am I audible? Yes, you are. Okay. So the topic today is AI for career growth. We all know that the purpose of AI is not for entertainment or anything. AI, the ultimate goal is for using AI for our career growth. We have to acquire some practical skills in our profession, whether we are doctors, whether we are engineers, whether we are in HR, finance, any walk of life, whether we are a teacher or a student. A student need most. The AI is needed by students. बहुत ज्यादा जरूरत है स्टूडेंट्स को इस टाइम पे। AI से सिर्फ कॉपी नहीं करना है, but we can learn fast with the help of AI. So AI is for career growth, mostly for professionals. So in next slide we will see how can that be done. So there is a AI paradigm shift that is called AI will not replace the professionals. Professionals using AI will replace who don't. So those professionals which are reluctant to AI, those professionals which say I don't want to learn AI, they will be phased out. They will certainly lose their jobs if they are not learning AI. In next few years they are going to lose their jobs. वो अपनी jobs गवा सकते हैं अगर उन्होंने, और वहां पे कोई मशीन्स नहीं आएगी, उनकी जगह पे मशीन नहीं आएंगे, बल्कि आएंगे वो प्रोफेशनल जो AI जानते होंगे. तो be ready for becoming that professionals. So this class is about that. कि आपको रेडी करना है. अगर बहुत से लोग AI यूज कर रहे होंगे, और मैं जानता हूँ इंडिया में काफी टैलेंटेड लोग हैं वो AI यूज कर रहे हैं, पर जो अपने प्रोफेशन के साथ अलाइन कर पाएंगे
वो अच्छे से कर पाएंगे एआई का इस्तेमाल। तो इसका जो मेन चीज है, जो मेन टारगेट है, अचीव हायर डेली प्रोडक्टिविटी इन आवर डे टू डे टास्क। वी कैन यूज एआई, whether writing emails, whether writing some learning program, we can use. Make better data-based decision. We can give data to that AI, and that AI will be giving us some reports. And as a human, we will take decision. AI will not take decision. We humans will take decision. Ultimate decision maker is human being. And after that, हम लोग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जो कि एआई से हम जल्दी पढ़ सकते हैं। वी कैन लर्न कॉम्प्लेक्स टॉपिक। सपोज somebody is saying quantum physics, what is quantum physics, what is fission, what is fusion. So these complex topics can be learned very faster with the help of AI. Become highly valuable to employers. We can become highly valuable to employers. Suppose there is a task which can be done in 8 hours, but we are completing that task in 4 hours or 3 hours or 2 hours. That the remaining time we are supposed to make some strategies valuable for your company. So the remaining time is not for enjoyment, but moving ahead, learning ahead, and give value to our company. हम लोग अपनी कंपनी के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपको कुछ साथ के साथ आपको कुछ जो है इसमें एक्टिविटी कराते चलते हैं, ताकि आप लोग बोरिंग ना लगे ये चैप्टर। जैसे आपका जो है, सपोज करिए कि स्लाइड 2 में अगर हम ये देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, तो ये स्लाइड 3 में आते हैं। एक्चुअली में क्रॉस इंडस्ट्री एआई इंटीग्रेशन, इसमें हम लोग इंडस्ट्री में अलग अलग, मान लीजिए आपकी कंपनी में फाइनेंस है, या आप मार्केटिंग में है, या एचआर में है, सप्लाई चेन या हेल्थ केयर में है, या आप एजुकेशन सेक्टर में है, या आप एक कोडर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या आप कस्टमर सर्विस में है। इन सारी चीजों में आपकी मदद एआई पूरे तौर पे करेगा। बी एश्योर्ड एआई इज गोइंग टू, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं और आप इस पोजीशन में हैं कि आप सप्लाई चेन में हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जॉब को खतरा है। You are in danger. So you should learn AI as soon as possible. तो सपोज करिए आप अगर एचआर हैं, एचआर यहाँ पे कोई एचआर है, यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट से है कोई? Am I audible? Yes, I guess nobody is there from HR. Some people from supply chain, some people from finance. Okay. Suppose एचआर में कोई एचआर है, वो रिक्रूटर। You are from HR? I think there is somebody from HR. Okay. So suppose करिए कि आपके पास रिक्रूटर्स हैं, एक जॉब के लिए एक जॉब निकली, उसमें से क्या करिए आप ये बता सकते हैं कि एक जॉब के लिए लगभग कितने सीवीज आ जाते होंगे आपके पास? कोई बता सकता है? More than 100, 200 for one post. More than 100, 200. Sometimes डाटा बताते हैं कि 1000 तक भी आ जाते हैं। अगर वो जॉब बहुत अच्छी है, एक जॉब के लिए 1000 तक आ सकते हैं। और अब इसके बाद जो है क्या होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम अप्लाई किया जाता है, एटीएस जिसे बोलते हैं। और वो जो है एक एटीएस, अगर एटीएस जो है हमारी टाइम सेविंग करता है एचआर की। ईसा आप एचआर में हैं, तो आप एटीएस यूज करते होंगे ना? मैं एचआर का फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, ओके। तो उसके बाद जो है, अगर 6 से 8 सेकेंड ये बताया जाता है कि 6 से 8 सेकेंड ही आपका जो है सीवी पे नजर पड़ती है एचआर की। इससे ज्यादा एचआर आपके सीवी को नहीं दे पाता है। और उस 6 सेकेंड में अगर आपका वो अलाइन नहीं है एटीएस के हिसाब से सीवी, तो आपका सीवी रिजेक्ट हो जाता है या साइड में डाल दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जो एटीएस सिस्टम सेलेक्ट करता है, जिसे एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं, वही एचआर के पास जाता है। फिर ह्यूमन रिव्यू होता है उसका, और फिर उन लोगों को कॉल किया जाता है। तो ये एटीएस के लिए Mr. Rakesh told me this topic, I think.
इसके बाद जो है अब हम एक लाइव डेमो करते हैं। सपोज कीजिए आप एक एचआर है, मैं एक लाइव डेमो आपको दिखाता हूँ। आप लोग इंटरेस्टेड है लाइव डेमो में? Yes, yes, I'm interested. यू आर इंटरेस्टेड, थैंक यू वेरी मच। आप एक सपोज कीजिए आप एक एचआर एग्जीक्यूटिव है और आप ये चाहते हैं कि आपका टाइम सेव हो जाए। तो आप ये चाहते हैं कि कोई 10 डेली टास्क ऐसे हो जहां पे एआई जो है आपकी टाइम सेव कर सकता हो, ये मुझे बताइए। और ये बात आप किससे पूछ रहे हैं? एआई से खुद पूछना है आपने। प्रेजेंट दिस आंसर इन ए टेबल फॉर्मेट में। आपको ये टेबल, आपने एआई से बोलना है कि आपने ये काम जो है टेबल फॉर्मेट में देना है मुझे। और ट्रेडिशनल टाइम और ये टेबल में कॉलम्स क्या होने चाहिए? टास्क होना चाहिए, फिर ट्रेडिशनल टाइम होना चाहिए, फिर एआई का टाइम, और फिर लास्ट कॉलम होना चाहिए एस्टिमेटेड टाइम कितना सेव हुआ। तो ये मैंने पहले से इस प्रॉम्प्ट को मान लीजिए लिख के रखा था ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। एक बार आप लोग प्रॉम्प्ट पढ़ लीजिए, ठीक है? शुड आई मूव? शुड आई गो अहेड? Yes, please. Yes. ओके। सो मैं एक एचआर, मैंने एआई से ही पूछा कि आप ये बताइए कि 10 डेली टास्क में मुझे जो है कितना टाइम सेव हो सकता है मेरा। तो एआई मेरे लिए बता रहा है कि रिज्यूम स्क्रीनिंग में 3 घंटे रोजाना मुझे लगते हैं पर डे में। एक एचआर का दिन भर में 3 घंटे लगते हैं। एआई ने कितने वो काम कर दिया 30 मिनट्स में। टाइम कितना सेव हुआ? 2.5 आवर्स। आफ्टर दैट राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी जिसे बोलते हैं, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने में कि भाई ये मुझे बंदा चाहिए तो उसका एक डिस्क्रिप्शन लिखना, उसे जेडी बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल टाइम 1 आवर लगता है, लेकिन एआई वो काम सिर्फ 10 मिनट में कर देता है। आपका टाइम बच गया 50 मिनट। इस तरीके से शेड्यूलिंग इंटरव्यू 1.5 आवर्स आपने 15 मिनट में कर दिया। तो ये टाइम आपका सारा कुछ सेव होके, अगर ये टोटल, अगर मैं थोड़ा इसलिए भी फास्ट करूंगा क्योंकि 23 मिनट यानी कि 5:23 हो रहे हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, तो मुझे थोड़ा फास्ट कीना चाहिए, ज्यादा डिटेल में तो जाना नहीं चाहिए। तो टोटल पोटेंशियली टाइम सेविंग 18 hours across tasks when multiple HR are automated on AI. तो ये करके AI tools can help HR executive mainly summarizing, searching, analyzing. यहाँ पे सिर्फ HR का काम, कुछ जहां जहां ह्यूमन की जरूरत होगी वहां पे वो HR लगाएगा अपना टाइम। बाकी काम चैट, इसको AI को ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि एचआर रिपोर्ट करना है, अगर आपने अटेंडेंस है, हायरिंग है, ये एचआर रिपोर्ट बनानी है, 4 घंटे का काम है वो 1 घंटे में कर देगा। तो ये बाकी बचा हुआ टाइम वो कंपनी के लिए स्ट्रेटजी बनाने में लगा देगा। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचेगा कि मैं ये टाइम अपना एंजॉय करूं। वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और वो परफॉर्म करेगा और अच्छी टास्क को कंपनी के लिए। तो लेट अस मूव टू द सेकंड वन। तो आप मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या कंपनी ऐसे एम्प्लॉय की वैल्यू करेगी जो काम आधे टाइम में निपटा दे अपना? वुड योर कंपनी वैल्यू एन एम्प्लॉय हु फिनिशेस द टास्क इन हाफ द टाइम अदर्स आर डूइंग? प्लीज आंसर। Yes, of course. ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली आपने आधे टाइम में कर दिया काम। तो अब जो है हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि समझ ये है कि सपोज कीजिए मैं 8 घंटे हर दिन जो है ऑफिस में काम में बिताता हूं, और उसके बाद ये एआई जो है से पहले कितना मेरे का टाइम लगता था और एआई के बाद कितना टाइम लगता था। अगर ये मैं पता करना चाहता हूं कि एआई कितना टाइम सेव कर सकता है, तो मैंने अगेन वो एक प्रॉम्प्ट लिख के रखा था और मैं इसको आपके सामने शूट करता हूं। तो 8 घंटे में अगर एचआर एग्जीक्यूटिव सुबह 9 बजे अगर वो काम अपना शुरू करता है, तो 9 से 10 के बीच वो ईमेल चेक करता है ट्रेडिशनली, लेकिन एआई समराइज कर देता है, ईमेल को प्रायोरिटाइज कर देता है, 40 मिनट उसके सेव कर लेता है, यानी कि सिर्फ 20 मिनट्स में काम कर देता जो 1 घंटे का काम था। इसी तरीके से 10 से 11 के बीच वो करता था, स्क्रीन करता था 50 से 100 रिव्यू मैनुअली,
एआई स्कैन करता है रिज्यूम को, मैच करता है स्किल के हिसाब से, 45 मिनट में ही वो सेविंग हो जाती है उसकी, सॉरी 15 मिनट में ही काम हो जाता है। ये पूरे दिन का जो उसका हिसाब किताब है पूरा जो है लेखा जोखा, वो शाम से 4 से 5 बजे के बीच लास्ट में जो करता था कि रिव्यू एम्प्लॉय फीडबैक, एआई एनालाइज करता है फीडबैक को पैटर्न के हिसाब से, और 45 मिनट वहां भी से इस तरीके से। बिफोर एआई 8 आवर्स लगते थे, अब जो है टाइम रिपीटेटिव टास्क में 6 आवर रख, क्योंकि एआई आपका वो काम जो रिपीटेटिव है वो वहीं पे वो टाइम सेव करता है। एआई नॉट गोइंग टू डू ह्यूमन वर्क, ह्यूमन वर्क तो ह्यूमन को ही करना होगा, बट एआई इज डूइंग दैट रिपीटेटिव टास्क which do not generally involve any human intelligence, they are labor intensive work, so AI is doing that work। तो 6 आवर्स का जो काम था वो 2.5 आवर्स में उसने कर लिया आफ्टर एआई। टाइम सेव हुआ 3.5 आवर्स अ डे। टाइम अवेलेबल हाई वैल्यू वर्क के लिए उसके पास कितना रह गया, 5.5 आवर। दो घंटे उसके पास बचते थे कुछ अच्छा काम करने के लिए, वो अब उसके पास ज्यादा टाइम है अच्छा काम करने के लिए।